पंजाब जीके ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਦਿਕ ਨਾਮ ਨੇ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਬਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵਿਪਾਸਾ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਆਸ ਤੇ ਵਿਪਾਸਾ बीवी, ठीक है ना, इनू बीवी करके जोड़ लो तुसी आपस दे विच, बीवी है ना जी। फिर आ रावी तुहाडा जिहड़ा सोगा ये हो गया तुहाडा ये इहदे नाल तुहाडा जी दैट इज परुषनी या एरावती, इनू किते राती नाल जोड़ लो, राती या रोशनी नाल जोड़ लो तुसी, राती या रोशनी नाल जोड़ लिया तुसी इस तरह ये है ना। तो इस तरीके नाल थोड़ा जिहा याद रख सकते। चनाब ये चीकनी रख लो तुसी, ये चनाब चीकनी, ठीक है जी। चनाब ते अस्कीनी ये चीकनी हो गया थोड़ा ये। जेलम वितासता ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ सोच के कुछ दस ਦਿਓ। बाकी सतलुज ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਤੂਤਰੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਐਸ ਇੱਕ ਸੇਮ ਵਰਡ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। तो इस तरीके ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। और ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ दैट इज सी ऑप्शन ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਿਪਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰੁਸ਼ਨੀ ਐਰਾਵਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਨਾਬ ਬਸਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਲਮ ਵਿਤਾਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। तो इस तरीके ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਟਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਡੈਸ਼ ਵਾਸ ਫੌਟ ਇਨ 1831 ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਡੈਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। तो ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਲਾਕੋਟ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਐਂਡ ਮਰਾਠਾਸ, ਬਾਲਾਕੋਟ 1831 ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਰਾਠੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਜ਼ਰੋ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਐਂਡ ਮਰਾਠਾਸ ਵਨਸ ਅਗੇਨ 1831 ਪੰਜਾਬ, ਹਜ਼ਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਅਟਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਮਰਾਠਾਸ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਲਾਕੋਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਸੈयद ਅਹਿਮਦ ਬਰੇਲਵੀ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ दैट मीन्स ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ दिस बैटल इत्थे बालाकोट आ जाएगा जी, बालाकोट, और इत्थे किहड़ा आ जाएगा महाराजा रणजीत सिंह। वैसे सैयद अहमद बरेलवी ये शेर सिंह के हथों मारा गया सीगा, क्योंकि शेर सिंह ने हमला किया सीगा, ये कहा जाता है। उस तो पहला 1827 ਦੇ ਵਿੱਚ बैटल ऑफ सैदो भी हुई सीगी और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਬਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, पर 1831 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। पर हज़रों की लड़ाई ये बारे में थानू कितनी बार पहला भी दस चुकिया, बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है। क्यों? क्योंकि 800 साल बाद तकरीबन पहली बार ये होया सीगा कि किसी हिंदुस्तानी ने अफगानिस्तान दी फौजां नू हराया होए। 1013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ उस वेले मोहम्मद गजनी ने, महमूद गजनी ने वो हिंदुस्तान दी फौजां नू बुरी तरह इत्थे हराया सीगा और उस तो बाद किसी भी लड़ाई दे विच जिहड़ा सीगा इंडियंस नहीं जित सके। और पर यह 800 साल बाद जिहड़ा सीगा किसी अफगान फोर्स नू जिहड़ा सीगा हराया गया सीगा और वो बैटल ऑफ हज़रो है। अरेंज द फॉलोइंग प्लेसिस विद रिस्पेक्ट टू देयर लोकेशन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम यह नीचे तो ऊपर तक तुसी देखने के किहड़ा जिहड़ी जगह हैगी है ये तुहाडी कित्थे पैंदी है, ठीक है जी। सो इस तरीके का पंजाब का एरिया हो गया तुहाडा। ये आपां देखते हैं सरदूलगढ़, सरदूलगढ़ तुहाडा ये नीचे नूं इत्थे पै जांदा है तुहाडा, ये बठिंडा इत्थे नूं आ जांदा है। ये निहाल सिंह वाला तुहाडा मोगे दे कोल इत्थे नूं आ गया ये। और फिर कांजली, कांजली तुहाडी ये तुहाडी आ गया कांजली तुहाडा कपूरथले दे कोल नेड़े आ गया तुहाडा ये। और आपां कादियां, कादियां तुहाडा है सब तो ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके नाल तुसीं इन्हां चीज़ां नूं आइडेंटिफाई कर सकते हो। दैट मीनस कि तुहाडी पंजाब की जोग्राफी भी चंगी होनी चाहिए, तां ही तुसीं जिहड़ा सीगा इन्हां सवालों का जवाब दे सकते हो।
तो ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਂਜਲੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਾਦੀਆਂ ਆ ਗਿਆ। तो इस तरीके नाल इन्हां चीज़ों नूं आपां याद रखने की कोशिश करांगे, क्योंकि तुहानूं ये पंजाब की जोग्राफी के उत्ते भी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चीज़ां याद होनियां चाहिदियां ने। नक्शे नूं दोबारा देख लो इहनूं ध्यान नाल ताकि ये याद रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं साडे कोल किहड़ा आउंदा है। अगला क्वेश्चन है ऑर्नामेंट्स। ये क्वेश्चन तो वैसे गलत हो गया, ठीक है जी, इसनूं छड्ड दी आपां इत्थे, ये क्वेश्चन गलत हो गया जी। Who of the following was a famous playwright and artist who was popularly known as ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ? ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਲੇ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ, ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗੇ। तो ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਭਾਈ सरदार गुरशरण सिंह भाई मन्ना सिंह। तो ये इन्हां दी तस्वीर है, तुसीं इन्हां दी 2011 में डेथ हुई, पर बहुत मशहूर आर्टिस्ट सीगे ये पंजाब दे और इन्हां बारे सारिआं नूं पता होना चाहिए। ईश्वर चंद नंदा इन्हां नूं फादर ऑफ पंजाब प्ले राइटर भी कहा जाता है। बलवंत गार्गी ये भी पंजाब दे बहुत मशहूर राइटर सीगे, प्ले राइटर भी सीगे। गुरदयाल सिंह इन्हां दा तुसीं नावल बहुत मशहूर सुने होने, मड़ी दा दीवा, जिन्हां बारे आपां पहलां भी कई बार गल कर चुके हां। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी डिफीटेड डैश इन द बैटल ऑफ डैश। तो ऑप्शन 4 ने अपने को इत्थे ये पृथ्वीराज और 2 ये दसे पृथ्वीराज ते महाराणा प्रताप, ठीक है जी। और हुण आपां देखिए इत्थे कि जे महाराणा प्रताप का सानू कुछ आइडिया होवे, ही वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। महाराणा प्रताप की जी सी आपां गल्लां सुनते हैं, वो अकबर के नाल हल्दी घाटी की लड़ाई हुई सी। सो दैट मीनस ये 2 ऑप्शन थोड़ी वैसे इतने कट गई। हुण किहड़ा बचिया अपने को ए एंड बी ऑप्शन। तो पृथ्वीराज नाल जिहड़ी लड़ाई हुई सी वो कित्थे हुई सी? तरौड़ी, तरावड़ी हरियाणे दे विच पैंदा, ये करनाल दे कोल, उत्थे ये लड़ाई हुई सी। सो इहदा जवाब किहड़ा होया जीगा? पृथ्वीराज। और किहड़ी बैटल ऑफ तराई या बैटल तरावड़ी कहा जाता है इहनूं। और कदों लड़ाई हुई सी? ये 1192 दे विच लड़ाई। 1191 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਹਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਨੇ ਹਰਾਇਆ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤਿਆਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 1 ਸਾਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ, ਭੁੰਜੇ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਤੇ ਇਹ कि उन्हें सारा साल कपड़े नहीं बदले, उन्होंने इन्ना अपने आप से रंज सीगा, गुस्सा सीगा कि मैं लड़ाई हार के किवें आ गया। और फिर वो 1192 च आके उन्हें दोबारा लड़ाई लड़ी और उत्थे आके दा सीगा फिर पृथ्वीराज चौहान को हराया उन्हें। वो भी तुसीं जानदे हो पृथ्वीराज चौहान की कहानी अपनी जिहड़ी सीगी कि उन्हें फिर तीर उन्होंने अन्ना कर दिता सीगा, अन्ना करके फिर भी जिहड़ा सीगा वो तीर अंदाजी च इन्ना माहिर सीगा कि आवाज़ सुन के भी जिहड़ा सीगा वो निशाने दे उत्ते तीर मार लैंदा सीगा। दैट वाज पृथ्वीराज चौहान। सो पर इसका जवाब किहड़ा होया तुहाडे कोल? ये पृथ्वीराज और बैटल ऑफ तरावड़ी या बैटल ऑफ तराई। डैश एस्टैब्लिश द फर्स्ट मुस्लिम स्टेट इन इंडिया। किसने इंडिया दे विच पहली मुस्लिम स्टेट एस्टैब्लिश की सी? तो महमूद गजनी ने 998 दे विच जदों कि इहने पहली बार हिंदुस्तान ते हमला किया, या मुहम्मद गौरी ने 1192 दे विच कि इन्हें कोई राजपाट एस्टैब्लिश किया? इन्हें कोई राजपाट एस्टैब्लिश नहीं किया। आया, लुटिया, लुट के चला गया। हिंदुस्तान से 17 बार हमले किए और 1026 दे विच तुहानूं याद होना है कित्थे हमला किया सीगा? इन्हें किया सीगा सोमनाथ के मंदिर से हमला किया सीगा। और गुजरात दे विच उत्थों बहुत सारा सोना ते चांदी जिहड़ा सी हीरे जवाहरात लुट के लैके गया सीगा, पर इन्हें हिंदुस्तान से राज नहीं किया। मुहम्मद गौरी 1192 दे विच इन्हें अटैक किया। इन्हें हाँ इन्हें जिहड़ा सीगा फिर ये कुतुबुद्दीन ऐबक नूं छड्ड के गया सीगा इत्थे और दिल्ली दे उत्ते जिहड़ा सीगा उहनूं अपना बना के गया सी। कुतुबुद्दीन ऐबक इहदा गुलाम भी सीगा और इहदा जवाई भी सीगा। तो इस तरीके नाल ये ऑप्शन हो सकती है। बाबर तो फिर इस वैसे कट गया क्योंकि जे उस तो पहला ये वाला जवाब आ जाए। पर मुहम्मद बिन कासिम 711 दे विच मुहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान के एरिए दे विच अपना राज एस्टैब्लिश किया सीगा। तो यह जवाब किहड़ा बनेगा तुहाडा? है बी ऑप्शन जवाब बनेगा। दैट इज मुहम्मद बिन कासिम
ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸਟੇਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖਲਜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਗਲਕ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਵਗੈਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਫ ਦਾ 5-6 ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਤਖਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਤਖਤ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ? ਕੋਈ ਤਖਤ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ had been the leader in making procurement of wheat for the central pool since the beginning of the process. In the year 2020, which state made more procurement of wheat than Punjab? 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। Which state publishes budget in Punjabi for the first time? ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਕਿਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਪੈਪਸੂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। 48-49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਪੈਪਸੂ। ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਪਟਿਆਲਾ ਸੀਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ? ਪਟਿਆਲਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। The Kashf al-Mahzoob was the first formal treatise on Sufism, compiled in the 11th century by the Persian scholar. ਕਿਹੜੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਕਸ਼ਫ ਅਲ-ਮਹਜ਼ੂਬ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਲੀ ਅਲ ਹੁਜਵਰੀ। ਅਲੀ ਅਲ ਹੁਜਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਪਰੈਡ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਲੀ ਅਲ ਹੁਜਵਰੀ ਹੀ ਵਾਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀ, ਥਿਓਲੋਜੀਅਨ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਅਫਗਾਨ ਸੂਫੀ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੂਫੀ ਸੀਗਾ? ਅਫਗਾਨ ਸੂਫੀ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਔਰ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਲਰੈਂਟ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਇਸਲਾਮ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਇਹਨੇ, ਤਾਂ ਅਲੀ ਅਲ ਹੁਜਵਰੀ ਸੀਗੀ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ 11th ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 11th ਸੈਂਚਰੀ ਮੀਨਸ ਸਨ 1000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 11th ਸੈਂਚਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅਰਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿਸ਼ਤੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅਲੀ ਅਲ ਹਜਵਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਅਰਬਿਕ। ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ better services to the citizen, Government of India launched Smart Cities Mission। ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? 2015 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਹੜੇ 3 ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਉਹ ਸੀਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ? ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? तो 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਜਦੋਂ 550ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? 4 ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਕਨਾਲ ਓਰੀਜਿਨੇਟਸ ਫਰੋਮ ਰਿਵਰ। ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਕਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਕਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਕਨਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਰਾਵੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ, ਬਿਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਬਿਆਸ ਐਂਡ ਸਤਲੁਜ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਿਆ
ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਸ ਦੁਆਬ ਕਨਾਲ? ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो ਜਦੋਂ ਰਿਵਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ, ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਐਵੇਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹਨੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, तो इधरले पासे अपना जाके ये फिरोजपुर के कोल बाहर जाएगी। तो ਇਹਦਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਆਬ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਇਆ। तो ਦੁਆਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਿੰਜਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਹ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਕਨਾਲ ਹੈ और बहुत लंबा एरिया ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਦੁਆਬ ਵਾਲਾ ਸਿੰਜਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ? ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਕਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1954-55 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸਿੰਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਰੋਪੜ ਹੈਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇਹ? ਰੋਪੜ ਹੈਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये पता होनी चाहिए। डैश डैम बिल्ट ऑन रिवर सतलुज वाज इनॉग्रेटेड इन द ईयर, ਕਿਹੜਾ ਡੈਮ और ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ तो नंगल 'ਚ 1956 नहीं जी, नागथा झाकरी नहीं जी, पौंग नहीं। भाखड़ा डैम 22 अक्तूबर 1963 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनॉग्रेट किया सीगा और इनू टैंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया का नाम भी दिता गया। तो इसका जवाब की हो जाएगा? भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम है जी। और 1963 तो ये कुछ क्वेश्चन ने जिहड़े कि पंजाब जीके दे ने, तो इन्हों भी याद रखो ताकि एग्जाम तुहाडे काम आउण। हेलो एवरीवन, चलिए 65 मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस थे एंड इन द एंड एज यूजुअल प्लीज अपना स्कोर टैली कीजिएगा कि कितने स्कोर बने हैं आपके। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द कल्टीवेशन ऑफ सिरल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन, ठीक है, सिरल्स का उत्पादन आपके सबसे पहले कब शुरू होता है? तो इट वाज इन नियोलिथिक एजेस, ठीक है, जस्ट बिफोर द चैल्कोलिथ एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। द टर्म स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू, स्टैग मतलब स्टैग्नेंट प्लस इन्फ्लेशन। ठीक है, तो स्टैग्नेंट यहाँ पे वर्ड आपको दिखाई देगा कि जहाँ पे स्टैग्नेंट ग्रोथ हो और बहुत ज़्यादा हाई अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें आपको कॉम्प्लीमेंट करती हुई क्या दिखाई देगी? हाई इन्फ्लेशन। विच न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक टू सर्व द कॉज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो बाल गंगाधर द्वारा चलाया गया जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था केसरी। ठीक है। नेक्स्ट, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर और मैगजीन महात्मा गांधी वाज नॉट एसोसिएटेड है? ठीक है, तो आपका पास हो जाएगा युगांतर। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, ये सारे के सारे महात्मा गांधी के ही द्वारा चलाए गए न्यूज़पेपर्स थे। Whenever the RBI does some open market operation transactions, actually it wishes to regulate which of the following? जब भी वो open market operation करती है तो वो क्या रेगुलेट कर रही है? बेसिकली लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, चाहे वो उसको सकअप करवाए, कम करे या ज्यादा करे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नोन एज सनराइजिंग इंडस्ट्री? ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में से आपके पास सनराइजिंग बेसिकली जो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही हो। ठीक है। बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द प्रियम्बल रिजॉल्व इंडिया टू बी, ठीक है, उससे पहले इंडिया कैसा था? सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बाद में इसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को ऐड किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टीज इज सोट टू बी सिक्योर्ड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया इन द प्रियम्बल? तो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है। Who among the following had moved to the objective resolution to which formed the basis of the preamble of the Constitution of India in the Constituent Assembly on December 13, 1946? तो it was जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने इसे प्रपोज किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो बाद में प्रियम्बल बनता है। By which amendment of the Constitution were the word socialist secular was added? That was the 42nd Amendment 1976। आर्टिकल 2A जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, ये भारत की कौन सी टेरिटरी के लिए? तो इट वाज स्पेशली एडेड फॉर सिक्किम। ठीक है, सिक्किम के लिए ऐड किया गया। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज इंक्लूडेड द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री शुड नॉट एग्जिस्ट। 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बीइंग ए नॉन मेंबर, हु अमंग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट हैविंग राइट टू वोट? बिना राइट टू वोट के कौन उस प्रोसीडिंग में आ सकता है? अटॉर्नी जनरल को अलाउ किया जाता है।
Who presided over the Lok Sabha when both speaker and deputy speaker are absent? तो any of the panel member nominated by speaker. Speaker किसी को भी nominate कर सकता है. What is the quorum of the constituent in a meeting of either house of the parliament? तो ये 1/10 of the total number of house members के होता है. अगर लोकसभा है तो 55 होगा, राज्यसभा है तो 25. What would happen if a person gets elected both as a member of parliament and member of legislative assembly of the state but does not resign either of the state? MP भी बन गया, MLA भी बन रहा, बट रिजाइन नहीं कर रहा, तो क्या होगा? तब आपको दिखाई देगा द पर्सन सीट इन द पार्लियामेंट बिकेम वेकेंट, तो आप MLA रहोगे, MP नहीं रहोगे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द टैक्स पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टली अफेक्ट्स लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द इकोनॉमी, अट्रैक्टिवनेस ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो आपको दिखाई देगा ये दोनों चीजें होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट, मोपला रिबिलियन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो इस एसोसिएटेड विद द केरला के साथ एसोसिएटेड है. Which of the following movement immediately followed the partition of Bengal? तो आपको स्वदेशी मूवमेंट 1905 और 6 में दिखाई देगा. Rowlatt Act was passed in the year, तो it was in 1919. Anarchical and Criminal Activities Act 1919 का था. Under the Swachh Bharat Mission Gramin Phase 2 of Jal Shakti Mission, which state secured the first position with 13960 ODF plus villages? तो it was तेलंगाना जो पहले नंबर पे रहा है. कोंगसेंग रेलवे स्टेशन विच इज रिसेंटली न्यूज में था, वो आपके कौन से स्टेट में है? दैट इज इन मणिपुर. ठीक है. मोहम्मद यूनिस अ नोबल लिटरेट हु आर सीन इन द न्यूज इज फ्रॉम विच कंट्री? तो इट इज फ्रॉम द बांग्लादेश. ठीक है, मोहम्मद यूनिस. डॉक्टर थानी अल जॉयदी द चेयर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज फ्रॉम द विच कंट्री? तो ये UAE से बिलोंग करते हैं. करमन कौर थांडी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? तो ये बिलोंग करती हैं, टेनिस से बिलोंग करती हैं. ठीक है. चल, दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम दिस सेक्शन, सो स्टे कंटिन्यूड फॉर द अदर वन. थैंक यू. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे. तो जैसे कि आपको मालूम है कि ज्ञानम हर हफ्ते आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आता है. तो आज मैं आशीष आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं और इस मॉक टेस्ट को हम लोग चेक करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं कंप्यूटर का. फर्स्ट क्वेश्चन है, smartphone combine dash radio technology with specifically designed processor as smartphone have evolved app developers and found the new way to use the hardware and wireless connectivity to make information instantly available to the user. मतलब एकदम से आप लोगों को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इंस्टेंट प्रोवाइड करवानी है तो इसमें आप कौन सी वैल्यू का यहाँ पे यूज़ करेंगे? तो वो है एनालॉग, GSM, सेलुलर या फिर डिजिटल. तो अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग सेलुलर टेक्नोलॉजी का इसमें क्या करते हैं? यूज़ करते हैं. किसका यूज़ करते हैं? सेलुलर टेक्नोलॉजी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करके किसी वैल्यू को इंस्टेंट आप लोग यहाँ पे पहुँचा लेते हैं. आज की डेट में ये जो चल रहा है टावर वगैरह, ये सारे सेलुलर टेक्नोलॉजी पे ही हैं. तो आंसर क्या बनेगा? C ऑप्शन. ठीक है जी. नेक्स्ट अगर बात करता हूं, अगर यहाँ पे देखते हैं आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर डेटा टेम्परेरीली एंड पास इट ऑन द डायरेक्टेड बाय अ कंट्रोल यूनिट. पहले तो डेटा को क्या करना है? टेम्परेरी स्टोर करना है. जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो डायरेक्टली इसको पास करना है, कंट्रोल यूनिट को पास करना है. तो एड्रेस है, रजिस्टर है, नंबर या मेमोरी. मेमोरी तो नहीं होगा, नंबर भी नहीं होगा. आपके पास यहाँ पे एड्रेस क्या बनेगा? रजिस्टर्स. रजिस्टर जो होते हैं वो टेम्परेरी मेमोरी को स्टोर करने के लिए आप लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं ताकि रन टाइम आप इसका यूज़ यहाँ पे कर पाएँ. तो आंसर क्या बनेगा? B फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट अगर बात करता हूँ, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग इन MS Excel फॉर्मूला. अब ये राउंड का फॉर्मूला है. राउंड का मतलब क्या होता है कि डेसिमल के बाद कितने पॉइंट आपको चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ कि देखो MS Excel आप लोग यूज़ किसके लिए करते हो? कि एक्यूरेसी के लिए. MS Excel में अगर मान लो कोई कैलकुलेशन आपने किया है जिसका रिजल्ट यह है 3.45678123, उतने डेसिमल दिखा देगा. अब मैं चाहता हूँ कि कैलकुलेशन का जब भी रिजल्ट आए तो पॉइंट में डेसिमल के बाद मेरे को 2 नंबर या फिर 3 नंबर या फिर 4 नंबर चाहिए. तो ये वो पूछा गया है. तो अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे लिखा गया है ना 3.4565 और यहाँ पे 3. ये 3 जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ डिजिट. कितने नंबर ऑफ डिजिट चाहिए? नंबर ऑफ डिजिट. अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे 3 है तो आपके पास 3 ही वैल्यू आपके पास यहाँ पे चाहिए. आपके पास 1 2 3. अगर यहाँ पे 2 होता तो इसका मतलब क्या होता कि ये 2 वैल्यू ही उठाता. अगर 1 होता तो 1 वैल्यू. अब ये राउंड ऑफ में उठाएगा तो 3.457 आपके पास 6 की बजाय 7 लेगा. तो ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा जो कि D ऑप्शन में रहेगा. जो किस में रहेगा? D ऑप्शन. ठीक है, तो होपफुली बात क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, आइडेंटिफाई द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. इनमें से
ओड वन आउट निकालिए। अगर ओड वन की बात करता हूँ, OMR, OCR, MICR एंड BDU। पहले मैं OMR का फुल फॉर्म बता देता हूँ, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ना जाने कितने पेपर में ये पूछे जाते हैं। और BDU क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ये तीनों के तीनों क्या है, इनपुट यूनिट हैं, और ये क्या है आपके पास, आउटपुट यूनिट है। आउटपुट यूनिट ही यहाँ पे क्या बनेगा, वो आपका आंसर बनेगा, आंसर इज BDU। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू अप्लाई एन एग्जिस्टिंग फॉर्मेटिंग एट अ मल्टीपल प्लेसेस इन अ MS वर्ड डॉक्यूमेंट। एक फॉर्मेटिंग आपने की है, एक जो भी चेंजेस आपने की है, तो मल्टीपल पेजेस पे वो आपको इम्प्लीमेंट करनी है, तो वो किसके थ्रू होगा, स्ट्राइक थ्रू, फॉर्मेट पेंटर के थ्रू, शेडिंग या चेंज केस। देखो चेंज केस तो आंसर बनेगा नहीं, इसका मतलब होता है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। शेडिंग का मतलब होता है शेडो, ये भी नहीं होगा। स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा होम, HOME, तो यहाँ पे ना ये बीच में लाइन लगा देता है, इसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। एक ही ऑप्शन बचा है, वो फॉर्मेट पेंटर के थ्रू आप लोग ये सारा का सारा काम कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करता हूँ, आपके पास यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स ऑफ द इंसर्ट मेन्यू इन MS PowerPoint 2016 can be used to quickly add a picture of any window that is open on your desktop on a presentation। तो आप 2016 में ऐसा कौन सा वैल्यू था जिसको इमीडिएटली आप लोग क्या कर सकते थे, ऐड कर सकते थे। पिक्चर था, स्क्रीनशॉट था, ऑनलाइन पिक्चर था, या फिर फोटो एल्बम। तो ऑनलाइन एकदम से ऐड करने के आपके पास फोटो स्क्रीनशॉट आपके पास ये ऑप्शन है, जिसके थ्रू 16 में आप लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये बताना है कि ये MS DOS जो है वो कौन सा टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले आपको समझना है कि दो टाइप के होते हैं जनरली, CUI एंड GUI। CUI स्टैंड फॉर कैरेक्टर यूजर, जिसपे कैरेक्टर से काम लिख के काम किया जाता है, और GUI मतलब ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा जहाँ माउस से काम किया जाता है, जैसे Windows 7, Windows 8, Windows 10, उनमें माउस का यूज़ करते हैं, मतलब पॉइंटर बनता है, तो वो होते हैं। अब ये जो MS DOS है ये कमांड बेस होती है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। कैरेक्टर यूजर भी इसी का नाम होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी इसी का होता है, कमांड लाइन इंटरफेस भी इसी का होता है, तो आंसर क्या बनेगा, B ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगर बात करता हूं, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज, पहला कंप्यूटर वायरस जो था वो कौन, आपके पास I Love You, ब्लास्टर, सेसर या फिर क्रीपर। अगर बात करता हूं तो सबसे पहला जो आपके पास वायरस था वो था क्रीपर। याद रखेंगे इसका नाम क्या था, क्रीपर। I Love You भी एक वायरस है। आपके पास एक फाइल भेजी जाती थी जिसका नाम लिखा होता था I Love You, और बच्चों लोग बड़े इसमें खुश होते थे कि किसी ने हमें I Love You लिख के भेजा। जैसे आपने ओपन किया वैसे आप लोग फंस जाते थे। तो होपफुली बात क्लियर है, D ऑप्शन क्या, क्रीपर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास द ईमेल फॉलोड टर्म डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज। जब भी ईमेल आप करते हैं तो सब्जेक्ट आप लोग लिखते हैं ताकि वो पता चल जाए कि ये मेल जो है वो किसके रिगार्डिंग है। तो डिस्क्राइब अगर करना है कि कंटेंट क्या है, तो आप लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। आंसर क्या बनेगा, सब्जेक्ट। अभी आपने तीनों देखा कि ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकते, ये तो वायरस है, तो आंसर क्या बनेगा, सब्जेक्ट, ठीक है जी। तो होपफुली यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू गाइस। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते आपके लिए एक न एक मॉक लाया जाता है, तो आज मैं आशीष आपका फिर से स्वागत करता हूं, और इसमें हम रीजनिंग को चेक करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास हैं, ठीक है, और कैसे आप लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए जी, तो ये रहा सबसे पहले आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। देयर आर 4 पीपल सिटिंग इन अ रो, 1 ईच फ्रॉम इंडिया, जापान, USA एंड जर्मनी। 4 हैं आपके पास, इंडिया से हैं। सबसे पहले क्या बताया गया है आपके पास, इंडिया, इंडिया आपके पास, जापान, USA एंड जर्मनी, बट नॉट इन दैट ऑर्डर। They are wearing cap of a different color, green, yellow, red and white। सबसे पहले क्या है, green, yellow, red and white, and not necessarily in that order। One is wearing kurta and t-shirt, और उसमें क्या लिखा है कि कुछ कुर्ता पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं। The Indian is wearing green cap and jacket। अब क्या बोला है आपके पास, इंडियन जो है वो ग्रीन कैप और जैकेट पहनता है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंडियन।
इंडियन क्या पहनता है आपके पास? ग्रीन कैप एंड जैकेट। लो जी, तो क्लास ग्रीन कैप एंड जैकेट। देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या पूछा गया है? आगे क्या बोला गया है? द अमेरिकन इज नॉट सिट एट द ईदर एंड, मतलब अमेरिकन ना तो इस कोने पे बैठा है ना तो इस कोने पे बैठा है, वो कहीं मिड पे ही बैठा है, ये तो पता लग गया। द पर्सन विद कुर्ता एंड टी शर्ट आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। कुर्ता और टी शर्ट एक दूसरे के आमने साथ बैठे हैं, कोई पहले है या कोई बाद में है, इस तरीके से यहाँ पे बैठा हुआ है। द पर्सन विद कुर्ता वेयर रेड कैप, कुर्ता जो है वो किसके साथ है? रेड कैप के साथ है। एंड सिट नेक्स्ट टू जापान, और जापान के नेक्स्ट पे ये बैठा है, पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। द जापान वेयर शर्ट, ठीक है, जापान जो है, अब इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो तो कम से कम मैं लिखूं, द जापानीज वेयर शर्ट, ठीक है, जापानीज वेयर शर्ट एंड नॉट ऑन सीट ऑन आइदर एज, और जापानीज जो है वो किसी कोने पे नहीं बैठा, तो मतलब ना तो इस कोने पे है ना तो इस कोने पे है। अब अगर मैं बात करता हूँ द मैन विद वाइट कैप वेयर टी शर्ट एंड वन ऑफ द एज। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो एक चीज देखो, देखो क्या था, कुर्ता और टी शर्ट आपके साथ इकट्ठा आएगा, तो शर्ट अगर आपके पास आ गई है तो बचा क्या? कुर्ता, और टी शर्ट ही आपके पास बचा हुआ है। तो इसको आप कैसे बिठाते हैं, इस चीज को जरा देखते हैं। देखो इंडिया आ गया, जापान आ गया, यूएसए एंड जर्मनी बचा हुआ है। अब यूएस से अगर मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन थी उसको देख लेते हैं। द पर्सन, और इसने क्या लिखा था? अमेरिकन जो था वो इधर एंड पे नहीं था, तो अमेरिकन अगर एंड पे नहीं है मतलब अमेरिकन यहाँ तो था नहीं, तो अमेरिकन यहाँ है। अब एक ही बचा है जर्मनी, तो जर्मन जो है आपके पास यहाँ पे आएगा, ये तो आपको पता चल गया क्योंकि उसने साफ तौर पे कहा था। अब अगर मैं बात करता हूँ तो कुर्ता जो था एंड टी शर्ट आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, और कुर्ता जो था वो था रेड कैप के ऊपर था, ठीक है, और नेक्स्ट टू जापान, जापान के आगे था आपके पास कुर्ता, तो इस तरफ तो जगह है नहीं, इसी तरफ जगह है, तो आप कुर्ता यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, और कुर्ता एंड टी शर्ट, यहाँ पे टी शर्ट आ जाएगा, और लास्ट में क्या लिखा है? कुर्ता जो है रेड कैप पहनता है, रेड कैप आपके पास है, तो भी आपने यहाँ पे ले लिया। फिर उसके बाद आपके पास है जापानीज वेयर शर्ट, जापानीज जो है वो क्या पहनता है? शर्ट। द मैन विद वाइट कैप टी शर्ट, टी शर्ट वाला पर्सन जो है वाइट कैप पे है, वाइट कैप पे है। अब अगर बस बात करता हूँ, आपके पास कंट्रीज आ गई हैं, कपड़े भी आ गए हैं, कैप आपके पास बचा हुआ तो एक ही कैप है, दैट इज येलो कैप, येलो कैप आपके पास यहाँ पे है, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे बना लिया। अब इसमें सबसे पहले चेक करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? हु वेयर टी शर्ट। अगर टी शर्ट की बात करता हूँ तो सबसे आखिर में यहाँ पे बैठा हुआ है कौन है? जर्मनी, जर्मनी, जर्मनी की अगर बात करता हूँ तो डी फॉर दिल्ली आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ हु वेयर कुर्ता, अगर कुर्ते की बात करी जाए तो कुर्ता किसने पहना है? कुर्ता जो है आपके पास पहना है अमेरिकन ने, अमेरिकन ने। अब देखो यहाँ पे अमेरिकन ने कुर्ता पहना हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगला क्या है? व्हाट इज द कलर ऑफ द कैप वोन बाय द जापानीज, जापानीज ने कौन सी कलर पहना हुआ है कैप का? तो जितना मेरे को याद है वो येलो था, तो येलो ही आप लोग यहाँ पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ हु वेयरिंग टी शर्ट, टी शर्ट जो था सबसे आखिर में था जर्मनी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ जैकेट, जैकेट किसका था? इंडियन का था, सबसे पहले जो था इंडियन का था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगर बात करता हूँ तो होपफुली पहले ये क्वेश्चन आपको जो लास्ट में अभी हमने किया है ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अब हम जो यहाँ पे अभी कर रहे थे तो थोड़ा बहुत आइडिया मेरे को हो गया था कि कौन कहाँ पे है, तो उसके बेसिस के ऊपर मैंने यहाँ पे आंसर टिक कर दिए। अब अगर बात करता हूँ आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट द पैटर्न, इनमें से कौन सी ऐसी फिगर है जो फिगर को कंप्लीट पैटर्न बना रही है? तो अगर बात करता हूँ एक ऑप्शन और ये दो ऑप्शन तो डायरेक्टली कट रहा है, इन दोनों में से एक आंसर होगा। अगर बात करता हूँ इन दोनों में से भी क्या, इस फिगर को आप चेक करोगे तो यहाँ बीच में ना एक एक्स्ट्रा लाइन है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, तो ए ऑप्शन अगर आप फिल करेंगे तो बिल्कुल सही आपका रिजल्ट यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ तो आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन एक और दिया गया है, इसमें क्या है? इन अ रो ऑफ गर्ल कमला इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, कमला जो है वो आपके पास है 10th फ्रॉम द लेफ्ट है। देन आगे आपके पास क्या है? बिमला इज 12th फ्रॉम द राइट, बिमला इज 12th फ्रॉम द राइट। ये आगे आपके पास यहाँ पे गिवन किया गया है व्हेन दे एक्सचेंज देयर प्लेसेस, कमला इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट,
अब जब भी ये अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, कमला इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट, 16 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है जी। देन आगे क्या है, बट इज द न्यू पोजीशन ऑफ बिमला फ्रॉम द राइट हैंड। अब पूछा गया है कि जब कमला ने अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पे आ गई, तो बिमला जब अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पे आएगी, तो आपके पास इसकी राइट हैंड से कितनी पोजीशन यहाँ पे होगी। ध्यान से देखो, कमला अगर यहाँ से ये पे गई है तो कितनी पोजीशन पार गई थी, 10 से 16 पे 6, तो ऑब्वियस है 12 से लेके उसने भी कितने आना था, 6 और आगे आना था। 12 से 6 और अगर आगे आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, इसमें क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, क्या लिखा है यहाँ पे, नोड टाओएस। इसका मीनिंग है शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। एंड अगला है TAKE एंड JO, मीन्स गुड एंड ब्यूटीफुल। एंड आगे है KEOS एंड A, ही इज गुड। तो आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द कोड ऑफ शी का कोड आपके पास क्या है, शी का कोड आपके पास यहाँ पे क्या है। अगर शी की मैं बात करता हूँ तो अगर यहाँ पे चेक करें, आपके पास यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं TA का कोड यहाँ पे क्या है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ठीक है जी। आगे देखता हूँ OS यहाँ पे है, OS यहाँ, तो इसमें आपके पास OS का कोड यहाँ पे क्या है, इज। तो बचा क्या, शी का कोड बचा है NOD, नोड, जो कि ऑप्शन में नहीं है। आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, क्या लिखा है, इफ द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट इन अ सीक्वेंस दिस आर इंटरचेंजिंग, आल्सो थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सेवंथ एंड एट्थ। अब पूछा है विच डिजिट वुड बी सेवंथ काउंटिंग टू योर लेफ्ट। जहां पे योर लेफ्ट आ जाता है इसका मीनिंग होता है राइट। तो पहले तो लिख लो, इसमें क्या लिखा है आपके पास, 5 9 8 1 3 2 7 4 3 8। ठीक है जी। अब चेक करते हैं यहाँ पे क्या है। अगर मैं चेक करता हूँ तो बोला कि पहले आपस में ऐसे इंटरचेंज कर लो, फिर इसके साथ यहाँ पे इंटरचेंज कर लो। चलो जी, तो सेवंथ आपके पास है फ्रॉम राइट, सेवंथ फ्रॉम द राइट। अगर सेवन फ्रॉम द राइट है तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पे इंटरचेंज होके कौन आएगा, 8 आएगा। तो ये आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है ना, इसका आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए जी, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस फिगर में चेक करना है आपके पास, हाउ मेनी स्क्वायर एंड अ ट्रायंगल आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें कितने आपके पास यहाँ पे स्क्वायर और ट्रायंगल हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर चेक करते हैं। तो स्क्वायर देखो बेटा, सबसे पहले 1 2 3 4 5, और ये आउटर जो है 6, और एक अंदर जो बना है 7। तो मतलब ये दो ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल होगी, इन दोनों में से एक ही आंसर आएगा। तो आगे ट्रायंगल काउंट करते हैं। ट्रायंगल में तो सबसे पहले 1 2, ठीक है, फिर आउटर बड़े वाला 3, फिर आपके पास अगर मैं बात करता हूँ 4 5, फिर आपके पास यहाँ पे 6 में ये आ गया पूरा, 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 15 16, फिर उसके बाद ये 17, ये 18। ठीक है, 18 तो पहले ही बन रहे हैं, मतलब 17 से तो ज़्यादा ही हैं, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो आपके पास 3 और भी रहे होंगे, तो आपके पास ए ऑप्शन जो है पूरा जरूरी नहीं है चेक करना है, आप ऐसे भी आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, 7 8 18 57, आपके पास डैश 1 1 6 5। अब यहाँ पे चेक करते हैं बेटा क्या हुआ है। अगर 7 से 8 के ऊपर गए हैं तो प्लस करके भी जा सकते हो, मल्टीप्लाई 1 + 1। ठीक है। देन अगर मैं बात करता हूँ मल्टीप्लाई 2 + 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 + 3, देन मल्टीप्लाई 4 + 4। तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास 228 + 4 32, 232। तो ये बी और बॉम्बे आपका जो है एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, कैलाश वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट।
ठीक है, एंड टर्न साउथ एंड वॉक 4 किलोमीटर, अगेन टर्न वेस्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर, देन आगे क्या है, हाउ फार ही द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपके पास जो है वो डिस्टेंस कितना रहेगा। तो अगर बात करता हूँ यहाँ 4 है, यहाँ पे फिर से कितना आ गया 4 है, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 है। तो आपके पास फॉर्मूला है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ऑफ पी स्क्वायर, है ना जी। अगर बात करता हूँ आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर प्लस 9, हाँ जी, 4 का स्क्वायर 16 है, तो 16 प्लस ऑफ 9 कितना होता है बेटा 25। तो 25 को जब भी h की वैल्यू निकालते हैं तो वो कितना आता है 5 के बराबर आता है। तो 5 के बराबर आपके पास बी फॉर बॉम्बे आपका जो है यहाँ पे आंसर आ गया। डन है बेटा। चलिए, तो होपफुली यहाँ तक आपको बात अच्छे से जो है क्लियर हुई होगी। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। टेस्ट का क्वांट के पार्ट का सोल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए ट्रेन इज 216 मीटर लॉन्ग एंड इट क्रॉस ए प्लेटफॉर्म इन 19 सेकेंड विद द स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। इफ some 21 meter long boxes are added in train and it cross same platform, then it take 26 seconds to cross the platform with the same speed. How many boxes were added to the train? तो boxes में कितने ट्रेन में कितने boxes ऐड किए गए थे। इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, एक चीज देखो, पहले कितने टाइम में क्रॉस किया था 19 सेकंड में, अब कितने टाइम में क्रॉस किया 26 सेकंड में। मतलब जो टाइम है वो 7 सेकंड से इंक्रीज हुआ है और उसकी स्पीड कितनी थी 21। तो हम कह सकते हैं कि टोटल इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल किया गया था और एक बॉक्स की लेंथ कितनी है 21, तो इनटू x, मतलब टोटल बॉक्सेस की लेंथ इतनी होगी, तो 21 से 21 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। तो 7 बॉक्सेस ऐड किए गए थे। इस क्वेश्चन में अक्सर आप पहले टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या होगी, तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट को ध्यान से समझे और इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड आप सोल्व कर सकते हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी, ठीक है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, रवि इज नाउ 4 years ओल्डर देन ईमा। जो रवि की एज है वो और ईमा की जो एज है, उन दोनों में कितने साल का डिफरेंस बताया गया, 4 साल का डिफरेंस बताया गया है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ईमा की एज को x मान लो, तो उसके हिसाब से जो रवि की एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x+4 हो जाएगी। तो रवि की एज कितनी हो जाएगी, x+4, एंड हाफ ऑफ दैट अमाउंट ओल्डर देन इशू, और उससे आधा वो कितना है, इशू से छोटा है। तो अगर मैं इशू की एज की बात करूं तो इशू की एज कितनी हो जाएगी, फिर वो 4 टाइम्स था तो ये 4 years लॉन्गर, ये 2 हो जाएगा। तो इशू की एज कितनी हो जाएगी, x+2 हो जाएगी। उसके बाद बोला है इफ इन 2 years, अगले 2 साल में रवि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ईमा। देखो, तो अगले 2 साल में अगर हम रवि की एज की बात करें तो कितनी हो जाएगी, x+4+2, मतलब रवि की एज कितनी हो जाएगी, x+6 हो जाएगी, ठीक है। और ईमा की एज अगले 2 साल में कितनी हो जाएगी, x+2 हो जाएगी, और ये इसका ट्वाइस है, तो कितना हो जाएगा, x+6 इज इक्वल टू 2x+4। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 2 आ गई है, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा था व्हाट वुड बी द रवि एज मल्टीप्लाइड बाय इशू एज, ठीक है। अब इशू की एज कितनी हो जाएगी आपकी 2+2 4, और ये कितनी हो जाएगी 2+4 6 इन 2 years। तो अगले 2 साल में मतलब ये 8 हो जाएगा और अगले 2 साल में ये 6 हो जाएगा। तो 8 × 6 48 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 8400 आफ्टर 3 years, 3 साल में 8400 रुपए, एंड 12,000 इन 6 years। देखो, अगर 3 साल में 8400 रुपीज हैं, 8400 रुपए हैं, और 6 साल में आपके कितने हैं, 12,000 रुपए हैं, तो मतलब 3 साल में जो इंटरेस्ट बढ़ा है वो कितना बढ़ा है। देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर देखेंगे तो 3600 रुपए का डिफरेंस आ रहा है कि 3 साल में 3600 रुपए ब्याज मिला था, तो पहले 3 साल में भी तो 3600 रुपए ब्याज मिला होगा। तो प्रिंसिपल प्लस 3600, और यही तो आपके 8400 रुपए बने थे, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा, 4800 रुपए आ गया। 3 साल में अगर 3600 रुपए ब्याज है तो 1 साल में कितना होगा,
1200 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब 25%, एक साल में कितना ब्याज मिला है? 25%। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी एंटर into a partnership by investing some amount. The investment of A is twice the investment of B. अगर B ने X लगाए हैं तो A ने कितने रुपए लगाए होंगे? 2x रुपए लगाए होंगे। Another person C join them after 4 months, और C ने 4 महीने बाद ज्वाइन किया। अगर इसका इनका कोई रिलेशन नहीं है तो इसके पैसे को Y मान लेते हैं, मतलब इसका पैसा 8 महीने के लिए लगा था सिर्फ। एट द एंड ऑफ ईयर द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड सी इज इक्वल। देखो अब इसका पैसा लगा था 12 महीने के लिए, इसका भी पारा लगा 12 महीने के लिए, तो ये कितना हो गया? 24x इज इक्वल टू 8y। ये इसको 3 पे काटेगा, तो मतलब 3x किसके इक्वल हो गया? y के इक्वल हो गया। 3x किसके इक्वल हो गया? y के। तो ये हम कह सकते हैं कि c का भी कितना आ जाएगा अमाउंट? 24x आ जाएगा। देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ b इज व्हाट परसेंट? b का कितना है? देखो 12x, इसका कितना है? 24x, मतलब इससे आधा है, तो आधा है तो 50%। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सर्टेन प्रोडक्ट C इज मेड ऑफ 2 varieties A and B in the proportion 2:5. The price of A is 3 times the price of B. अगर B का प्राइस x है तो A का प्राइस कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं ओवरऑल कॉस्टिंग ऑफ C इज 5.20 रुपीज पर केजी इंक्लूडिंग लेबर चार्जेस ऑफ 40 पैसा। मतलब 5 रुपए 20 पैसे लगे थे, जिसमें से 80 पैसा तो उसकी क्या है? सिर्फ लेबर है। तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो जो टोटल उसका प्रोडक्ट की कॉस्ट थी वो कितनी रही होगी? 4 रुपए 40 पैसे रही होगी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ B पर केजी। तो B की हमें कॉस्ट निकालनी है, पर केजी कितनी होगी? ठीक है। अब एक चीज देखो, अब यहां से बात करें तो ये 3x इंटू 2 प्लस 5 इंटू एक्स, क्योंकि इस रेशो में लिया गया था। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 + 2 7 इज इक्वल टू 4.40। तो ये कितना हो जाएगा? 6 + 5 11x इज इक्वल टू 440 इंटू 7, पॉइंट हटा दो, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं 40 पे, 7 × 28 280, तो 2.80 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अगर ध्यान से देखते तो इस क्वेश्चन को वैसे भी आंसर आ रहा था आपका, क्योंकि हमारी ये कॉस्ट कितनी आई थी? 4 रुपये 40 पैसे। तो मतलब 4 रुपये 40 पैसे, ये तो 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, इतना क्लोज होगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन डी ही आपका आंसर बचता था, बाय ऑप्शन भी कर सकते थे। क्या कह रहे हैं? इन ए लाइब्रेरी 30% ऑफ द बुक्स आर इन हिस्ट्री। अगर टोटल x बुक्स हैं तो 30% अगर हिस्ट्री की हैं तो बाकी बची कितनी? 70%। 50% ऑफ द रिमेनिंग, तो बची और कितनी? 50%। 50%। ठीक है, एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग, तो और रिमेनिंग कितनी हमारे पास? 60%। और अब कितनी बची है? 4200 बुक्स। 70 इंटू 60 4200, पूरा पूरा कैंसिल, ये इसको 2 पे डिवाइड करेगा तो 20,000। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर आर 3 consecutive odd numbers and 3 consecutive even numbers. The smallest even number is 9 more than the largest odd number if the square of the average of all the 3 given odd number is 507 less than 50 less than the square of average of all 3 given even numbers. What is the स्मॉलेस्ट ओड नंबर? तो स्मॉलेस्ट ओड नंबर क्या है? देखो 3 नंबर आपके पास है, 11 13 17 और 19। ठीक है, अब स्टेटमेंट को अगर ध्यान से देखें तो स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? 3 consecutive odd numbers and 3 consecutive even numbers. अब अगर एक नंबर को x मान लो तो नेक्स्ट नंबर आपका क्या बनता है? x + 2 बनता है, और नेक्स्ट नंबर x + 4 बनता है। या अगर मैं सेंटर वाले नंबर को x मान लूं तो नेक्स्ट नंबर मेरा x + 2 होगा, और ये नंबर मेरा x - 4 होगा। ठीक है, इस 2 तरीके से जब भी अगर 3 consecutive नंबर की बात हो तो आप कुछ इस तरीके से नंबर को मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला था स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 9 मोर देन जो लार्जेस्ट ऑड नंबर, कि जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है लार्जेस्ट ऑड नंबर से आपका 9 बड़ा है।
इस क्वेश्चन को अगर ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। देखो, या इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। थ्री कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं तो ऑड नंबर हम लेट कर लेते हैं, वो क्या हो जाएंगे आपके x माइनस 2 x और x प्लस, और थ्री कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर जो हैं वो हो जाएंगे आपके y, अलग वेरिएबल ले लेते हैं, y माइनस 2 y और y प्लस 2, ठीक है। तीन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हैं और तीन कॉन्जिक्यूटिव हमारे पास ऑड नंबर हैं। अब उसने क्या बोला था, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है y माइनस 2, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 9 मोर देन द लार्जेस्ट ऑड नंबर, तो x प्लस 2 और इसमें क्या कर दे 9 ऐड कर दे, ठीक है। तो y माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 9 2 11 और 13, मतलब y माइनस एक्स, और y माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 आ जाएगी। उसके बाद उसने क्या बोला था, इफ द स्क्वायर ऑफ एवरेज ऑफ ऑल द थ्री ऑड नंबर्स, और थ्री ऑड नंबर्स का एवरेज क्या होगा x ही होगा, तो x स्क्वायर इज 507 लेस देन द स्क्वायर ऑफ एवरेज ऑफ ऑल द थ्री इवन नंबर, और इन इवन नंबर का एवरेज कितना होगा y स्क्वायर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 507 है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 507। एक सेकेंड, ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये लेस था, तो ये इसको अगर इस तरीके से लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी अप्लाई हो रहा है, तो y प्लस एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 507। y माइनस एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो 13 पुट कर सकते हो, 13 से इसको डिवाइड करो, 13 39, फिर 11 बचेगा और 13 9 पे काट देगा, तो y प्लस एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 39 आ रही है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 2y कितना 52, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई 26 आ गई। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो y की वैल्यू अगर 26 है तो x की वैल्यू कितनी होगी 13 होगी, 13 माइनस 2 11 होगा, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या करें, ए ट्रेन मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट, 30 किलोमीटर 12/60 प्लस 45 इंटू 8 डिवाइड बाई 60 डिवाइड बाई टोटल टाइम 12/60 प्लस 8 डिवाइड बाई 60। इसको 2 पे काटेंगे, ये इसको 6 पे करेगा, ठीक है। ये 3 और 4, ये इसको 2 पे करेगा, तो 3 इंटू 6, ऊपर टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 12, एलसीएम लेंगे तो 60 ही होगा इंटू 60, तो 12 प्लस 8 20 इसको 3 पे डिवाइड करेगा, तो 12 इंटू 3 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद क्या करें, कंटेनर कंटेन्स 4 लीटर ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट, 4 निकाला गया है 40 में से, मतलब 1/10 निकाला गया, कितना बचा 9/10, तो 40 इंटू 9/10 फर्दर 2 टाइम्स, मतलब 3 बार किया गया है, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 9 का क्यूब 729 इंटू 4 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 2800 और उसके बाद 116, तो 2916 ऑप्शन डी। उसके बाद क्या बोला, इन वट रेशो मट ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज, पहली की कीमत कितनी है 50 रुपये, दूसरी की कीमत कितनी है 60 रुपये, बाय सेलिंग मिक्सचर 60.50 एट 10% प्रॉफिट, इसके ऊपर 10% प्रॉफिट लेगा 55, इसके ऊपर लेगा 60, लगा दो एलिगेशन बस। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5.5, यहाँ भी कितना है 5.5, तो मतलब रेशो कितना होगा 1:1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू ए वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर, मतलब वो क्या कह रहा है कि ए जितना टाइम लेता है उतना बी और सी लेते हैं,
टाइम का रेशो 1:1 है तो एफिशिएंसी का रेशो भी क्या होगा, 1:1 होगा। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि अगर ए और बी किसी काम को 10 दिन में और सी अकेला करता है 50 दिन में, तो एलसीएम लेंगे तो 50 तो होगा। एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 और 1, ठीक है। तो देखो 5 + 1 टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, 6, मतलब ए की भी 3 होगी और बी प्लस सी की भी 3 होगी। देखो ए की एफिशिएंसी 3 है, सी की एफिशिएंसी 1 है, तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 2। तो 50 वर्क है, 2 के एफिशिएंसी से करेगा तो 25 डेज में कंप्लीट कर देगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर, अगर उसकी सैलरी एक्स मान लें, 10% डिडक्टेड एज हाउस रेंट, बचा कितना, 90%। 15% ऑफ द रेस्ट बचा कितना, 85%। एंड 10% ऑफ द बैलेंस फिर से कितना बचा, 90%। और ये किसके इक्वल है, 1377 के इक्वल है। 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। उसके बाद अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले तो 9 इसको 1 पे डिवाइड करेगा, बचेगा 4, कितना बच गया आपका 47, फिर करेगा 5 पे, फिर करेगा 3 पे। अब 9 से डिवाइड करोगे तो ये 17 इसको 5 पे डिवाइड करेगा और 5 इसको 20 पे। 20 × 100 2000, ऑप्शन ए आपका आंसर आ गया। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन द सेम सम फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 25%। 25% मतलब कितना डिफरेंस होगा, 6.25% होगा, और इसकी वैल्यू दे रखी है 1500। तो 1500 डिवाइड बाय 625 इंटू 100 × 100, ठीक है। अगर मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो 25 इसको 4 पे करेगा, 25 इसको 4 पे डिवाइड करेगा, तो 1500 × 16, 15 गुना 16 कितना होता है, 240। तो 2400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन सभी क्लियर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। Hello everybody, welcome to this session by Gyanam. We are to the English section of this mock. Let's see what we have in store as per the English section. ये आपके पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ईच ऑफ आवर स्टूडेंट्स। कहता अगर आपने आवर स्टूडेंट्स लगाया है तो साफ पता लग रहा है स्टूडेंट्स ईच को देखकर लगा है, ऑफ लग गया है, तो वो तो बिल्कुल करेक्ट है। बट हाँ, स्टार्ट ईच से हो तो सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर हो जाएगा तो पेज हो जाएगा आंसर। तो आपके पास पेज कहाँ कहाँ है, सिर्फ बी और में, और आगे ईच से स्टार्ट हुआ सिंगुलर तो हिज भी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास फिर से इट इज एसेंशियल टू थॉरली क्लीन द मशीन ऑफ, नहीं, इट इज एसेंशियल टू क्लीन थॉरली, क्लीन चाहिए और थॉरली चाहिए, यहां पे थॉरली की कमी थी। नेक्स्ट आई टोल्ड हिम क्लियरली दैट ही हैड नॉट ऑट टू डू दैट टू मी, ऑट के साथ नॉट लगाइए लेकिन ऑट और टू के बीच में लगाइए, तो ही ऑट नॉट टू हो जाएगा हैव डन दैट टू मी। When a man has to give evidence, he must have a clean breast of the whole. ना, he must make a clean breast of, crystal clear of all, बनाना पड़ेगा, make. Idioms आया है, he is a plain, simple and sincere man. He will always call a spade a spade. फालतू की बातें नहीं करता, जो साफ है वही बोलता है. Resist from making controversial statement. जो सामने है वही बोलेगा. He is a cut above teachers in the school. टीचर से कट अबव है मतलब ऊपर है, तो कट अबव का मतलब क्या हो गया, सुपीरियर और अच्छा होना। यहां पर आपको ऑपोजिट बताना, द यंग बिजनेस एग्जीक्यूटिव वाज वेरी परस्पिकेशियस। परस्पिकेशियस मतलब रिलायबल, इसका ऑपोजिट अनरिलायबल। फिर से ऑपोजिट बताना है, द स्पीकर मेड सम वेरी कोगेंट मार्क्स, तो कोगेंट का मतलब होगा कन्विंसिंग और उसका ऑपोजिट हो जाएगा अनकन्विंसिंग मार्क। तो ये वाला सेंटेंस कहां चला गया, अनकन्विंसिंग में चला गया। नेक्स्ट ही फेल्ट, वो सिक लग रहा था, गुडली नहीं होगा, वेल होता तो चल जाता, तो ही स्टेड एट होम। डॉक्टर सेड दैट, तो पर दैट आ गया। द वुंड लुक्ड वेरी बैड हो जाएगा। She dash her daughter to school before she goes, यहां प्रेजेंट है तो वहां भी प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा, तो टेक्स। सिनोनिम्स बताने, एटर्नल का सिनोनिम हो गया एवरलास्टिंग। करेक्ट सेंटेंस बताना है, she refused to let either of us go home, उसने मना कर दिया कि हमको वो जाने दे। हाँ, this is the correct one. There we go with this, a super simple mock in front of you. Thank you.